Good evening, everyone. We will start our session with prayer. Back straight, close your eyes. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahe Tejasvinameditamastu Ma Vidvishavahe. Rub your palms, cup your eyes, gently remove and slowly open your eyes. Namaste everyone. I am Kiran Tyagi from Arambh Yoga Institute. Good evening. A very warm welcome to all of you for this yoga session on the occasion of International Women's Day 2023. Women are competent, dynamic at work, versatile, successful, and above all, caring and affectionate. They are the superglue that hold many pieces of life together. While maintaining work-life balance, women get stretched and stressed. While they look after everyone around them, who looks after them? Keeping this question in mind, on special occasion of Women's Day 2023, Arambh Yoga Institute is celebrating the whole month of March as International Women's Day by organizing a series of yogic practices and knowledge sessions conducted by Yoga Sadhak. To begin with, I would like to give some insights about Arambh Yoga Institute. Arambh Yoga Institute, Kandivali, Mumbai, is an ISO 9001 certified institute of international standards and is recognized by Yoga Certification Board under Ministry of Ayush. It is running as an international wing of Arambh Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. Arambh Yoga Institute is a trusted yoga institute which works to enlighten the world, especially young aspirants, with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession. We introduce them to the real essence of yoga and benefits of applying yogic principles and practices to their lifestyles. It results in improved balance of an individual on multiple aspects of life, hence creating a better society. Now, let me share the other major activities being conducted at Arambh Yoga Institute. Regular yoga classes every day, early in the morning, and late afternoon on various days. Advanced yoga, power yoga, society yoga, corporate yoga, partner yoga, pregnancy yoga class under the guidance of a yoga expert and a doctor. Arambh Yoga is also conducting professional certification courses like Yoga Teachers Training courses and preparation courses for Yoga Certification Board from level 1 to level 4. Arambh Yoga also conduct the coaching and guidance program towards UGC and NET GRF exams preparations. Now, let me share a few words about the force behind Arambh Yoga Institute, Director Sushma Maurya Madam. She is a qualified professor awarded by University Grant Commission, India. Her educational qualifications are MA in Education, Diploma in Education, MA in Yoga Shastra, Postgraduate Diploma in Yogic Science, Foundation course in Yoga, Madhyam Yoga Shiksha Teacher Training course. She has been honored with Yoga Shri Award by Indian Young Olympian Federation and Patanjali College of Yoga and Research Center. Sushma Madam is certified yoga teacher for all 4 levels and a lead yoga examiner of Yoga Certification Board, which comes under Ministry of Ayush, Government of India. That's not all. She is a karate champion holding black belt. Before starting the Arambh Yoga Institute for imparting ancient knowledge of yoga for the benefits of our society, she has trained various celebrities and well-known personalities of different walks of life. She has been working in
association with various renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, clubs, more than 15 years. Shrishma Madam takes Aram Yoga Institute as a medium to inspire and encourage young generation to consider yoga teaching as a mainstream profession. She aspires to take this holistic health resource to every home to make it our life's integral part. So let's begin our today's yoga session on concept of diet and nutrition for healthy living. It is my privilege and honor to introduce Rita Rajak Madam, who will be taking you through today's yoga session on concept of diet and nutrition for healthy living. She has joined online from Mumbai. Her educational qualifications are MSc in Chemistry, B.Ed. MA in Education. Yoga credentials are TTC from Yoga Institute, PG Diploma in Yogic Science, MA in Yoga Shastra, QCI level qualified, UGC NET qualified. Without any further ado, may I request Rita Madam to take over and guide you all on today's yoga session. Happy Women's Day, happy learning, safe, stay fit, stay safe. Thank you. Thank you, Kiranji, for such lovely introduction. So here I am. My topic is diet and nutrition for the healthy living. The reason of taking this is like I know most of you who are attending this class are yoga teachers, and most of you who are interested in yoga and in fitness are joining who are not yoga teachers. But being yoga teacher or non-yoga teacher, for everybody, what makes us fit is yoga as well as the food habit, what is there in our day-to-day life. So I'm just going to introduce you with the basic concepts, and which is going to be helping you as individual, as well as you can use this basic knowledge with your students to make their practices, complement them with this diet, so that even they with the yoga they inculcate this diet into their day-to-day life, and they can get more and more benefit. So I'll just share the screen. Okay. So basically, we are going to talk about basic concepts of diet. Means, in a sense of, we will be studying what are the basic food we need to take in our day-to-day life, and what are the daily requirements for us in a day-to-day life to become healthy. We will not be doing too much technical words, so that it should not be reaching to you, but I will try to make it as easy as for you. And if any doubt is there, last 15 minutes or 10 minutes, we'll go ahead with the question answers for you. If you have any doubt, you can definitely ask me. So, concept of diet and nutrition for healthy living. Along with this, we will be seeing that what is diet and what is nutrition. The word diet, first thing, whenever we say diet, what thing come in our mind is diet. Like, we don't eat food, or we, yes, Shnuji, actually, I don't know, the screen is just dancing a little bit, so I will just switch off and I switch it on. So, when I say word diet, सबके दिमाग में एक बात आती है, diet मतलब कम खाना है, ज़्यादा नहीं खाना, वेट कम करना है तो हमें थोड़ा खाना होगा, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना. बट मैं बोलूंगी डाइट का वो मीनिंग नहीं होती. पहली चीज, दिमाग से ये वर्ड निकाल दीजिए कि डाइट का मतलब डाइट करना होता है, और डाइट का मतलब ये होता है कि हमें बहुत ही लिमिटेड खाना है, या हमें ये नहीं खाना है, या ये खाना है. सब ऐसा होता है, बट इन द एस्पेक्ट अगर आप अवेयरनेस से चीजों को खाते हो और एक प्लान्ड आउट तरीके से खाते हो, तो आप सब कुछ खा सकते हो. एक प्रपोर्शन में यू कैन हैव योर डाइट. तो आज हम मीनिंग देखेंगे, डाइट का मीनिंग क्या होता है, हम जो खाते हैं फूड, उसका मीनिंग क्या होता है, और फूड के थ्रू हमें जो चीजें मिलती है वो क्या होती है,
कैसी होती है और वो हमारी बॉडी को किस तरीके से हेल्प करती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो व्हेन आई से फूड, हमारे दिमाग में क्या आता है? तो जो हमें अच्छा लगता है वो, जो हमें नहीं अच्छा लगता वो, जो हम खाते हैं और जो हमें खाने का मूड हो रहा है। अगर मैं अभी बोलूं कुछ खाने के बारे में सोचे तो डेफिनेटली इवनिंग है। अभी देखिए विष्णु जी मस्त में कॉफी पी रहे थे, किसी को चाय याद आएगी, किसी को कॉफी, किसी को जंक, किसी को कुछ भी याद आएगा। बट यस, व्हेन वी थिंक अबाउट फूड, एवरीथिंग व्हाट वी लाइक कम्स इन आवर माइंड। बट बीइंग वी आर इनटू द योगा, हमारे साथ वो एक क्वेश्चन मार्क भी आ जाता है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें भी एक कॉन्सेप्ट बताया गया है जिस विच इज कॉल्ड एज सात्विक, राजसिक एंड तामसिक डाइट। तो हम जब भी कुछ खाने के बारे में सोचते हैं तो हमें ये चीजें भी रिस्ट्रिक्ट करती है। जैसे संडेज को या हम शादी में गए और कुछ अच्छा सा खाना सामने आया तो हम तुरंत सोचा रहे ये तो राजसिक है, ये तो राजसिक है। हम डिफ्रेंशिएट करने लगते हैं। दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट अ योगा टीचर, दैट वी आर अवेयर। बट एक नॉर्मल इंसान और एक नॉर्मल एज ए ह्यूमन बीइंग, हमारे दिमाग में हर वो चीज आती है जो हम खाते हैं। बट आज के बाद आपके दिमाग में खाने वाली चीजें आने के साथ साथ आपके दिमाग में दो कैटेगरीज में भी आपका खाना डिवाइड होगा, 2 से 3 कैटेगरीज में। और आप उस कैलकुलेशन के साथ खाओगे, सब कुछ खाओगे बट विद द कैलकुलेशन दैट वी आर गोइंग टू सी हाउ। सो फूड, what is food? So food is anything what we eat, right? Food is the substances taken into the body that will help us to meet our body's need for energy, for maintenance of our health, growth and reproduction. So whenever we eat any food, जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो सिर्फ हम एज अ टेस्ट नहीं खाते, हम उसको इसलिए खाते कि उससे हमें एनर्जी मिलती है, उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, उससे हमारी ग्रोथ होती है। और बहुत सारे एस्पेक्ट लाइक फूड के होते हैं जो एज अ ह्यूमन बीइंग हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होता है। सो जो भी कुछ हम खाते हैं जो हमारी इस नीड को पूरा करता है, दैट्स अ फूड। न्यूट्रिशन, फूड तो मैंने खा लिया क्योंकि मुझे आई नीड टू वर्क, आई नीड एनर्जी, आई नीड टू लिव, आई नीड टू मेंटेन माई हेल्थ, सो आई टेक द फूड। But that's a broad aspect. When you go ahead with the lower down or narrow the aspect, food is further classified, or you can say taken as a nutrition. You never take anything which doesn't give you nutrition, right? हम कोई भी ऐसी चीज तो नहीं खाते जिससे हमें कुछ ना मिले, बस टेस्ट आए और हमने बस इंजॉय करें, ऐसा नहीं होता। एक सिंपल पानी पूरी भी आप खाते हो ना तो उसमें भी न्यूट्रिशन होता है, ऐसा नहीं है। आप एक सेव पूरी खाओ, पानी पूरी खाओ, दही पूरी खाओ। मैं इसलिए बोलूं क्योंकि अभी शाम है तो लोगों को यही अच्छा लगता है खाने के लिए। सिंपल एक वड़ा पाव भी खाओगे तो उसमें भी कुछ होता है, ऐसा नहीं है। सो एवरी फूड व्हाट यू टेक गिव्स यू सर्टेन काइंड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड व्हाई वी नीड दैट? सो न्यूट्रिशंस अगेन, food gives us nutrition, and what are nutrition? So nutrition is defined as the process by which an animal or plant takes in and utilize the food essentials. Nutrient include your protein, carbohydrate, fat, vitamins, mineral, electrolytes, and etc. 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 So जब भी हम कोई भी फूड खाते हैं तो हमें ये पता वहां से हमें एनर्जी मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, and we are going to get energy, nutrition, and many more things. But what is that? So एनर्जी क्या होती है? किसी फॉर्म में हमारी बॉडी में आती है, और वो फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट, वो होता है फैट, वो होते हैं वाइटामिन भी होते हैं। वाइटामिन से आपको एनर्जी नहीं, बट कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलती है। उसके अलावा जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली आपने एक एप्पल खाया, आपको तो वो सिंपल सा एप्पल लगा कि मैंने तो एक एप्पल खा लिया, लेकिन वो एप्पल जब आपके अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है तो वो एक एप्पल नहीं रहता, बल्कि वो मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, वो बहुत सारे फूड में डिवाइड हो जाते हैं। ओके,
Okay, you want me to go with the slide show? Okay, no problem. This way, Vishnu ji, you wanted slide? Okay. Thank you. I thought, but I forgot. Okay, so nutritions are that. एक एप्पल खा लिया मैंने तो बोला मैंने एक एप्पल खा लिया, बट उस एप्पल से मुझे क्या क्या मिला वो मैटर करता है. सो दैट्स अ न्यूट्रिशन. आप एक सिंपल सा फूड लेते हो, वो आपकी बॉडी में जाके जब ब्रेक डाउन होता है तो वो बहुत सारे न्यूट्रिएंट में ग्रुप हो जाता है, एंड दैट्स अ न्यूट्रिशन व्हाट योर बॉडी अब्सॉर्ब. आगे आप डाइट, तो डाइट वो नहीं है जो हम डाइटिशियन वाला डाइट करते हैं. डाइट इज अ सम ऑफ द फूड कंज्यूम्ड बाय अ पर्सन. हम जो खाते हैं, हम बोलते हैं ना किसी किसी का एपेटाइट कम है, कोई कोई किसी किसी की डाइट बहुत कम है. मतलब द अमाउंट ऑफ फूड व्हाट यू टेक, द अमाउंट ऑफ फूड यू कंज्यूम इज योर डाइट. एपेटाइट जो हम लोग अदर वर्ड में बोलते हैं एपेटाइट. मेरा एपेटाइट कम है, मैं 2 चपाती खा सकती हूँ एट ए टाइम. मेरा एपेटाइट बहुत ज्यादा है, मैं हर 3 घंटे में खा सकती हूँ. सो द अमाउंट, द एपेटाइट इज exactly as a diet. This is in context with the nutrition and food. Okay, we are not talking about a diet in the sense of weight loss or any other aspect of it. अब फूड में क्या क्या होता है हम वो देखेंगे. अब मैंने तो खाना खा लिया, मुझे क्या पता था वो अंदर चला गया. इट इज गॉन नाउ, इट विल बी फर्दर प्रोसेस होगा. हम सभी ने डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है. तो क्या होता है जब हमारा फूड, फर्स्ट ऑफ ऑल when we start eating our food, what happened? So when we eat our food, हम फूड को क्या करते हैं, च्यू करते हैं, राइट. सो जब हम फूड को च्यू करते हैं तो we have salivary gland. There are 3 different salivary gland in our mouth. Your food digestion start from your mouth. So when you start chewing the food, it is very important, आपको बोला गया है कि फूड को 36 टाइम च्यू करना होता है. हम 36 टाइम तो कर नहीं पाते हैं बेसिकली, बट इट इज सेड दैट वी हैव टू च्यू आवर फूड फॉर 36 टाइम. द रीजन बिहाइंड दैट इज, आप वो जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनको छोटा 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 यू मेक इट अ पेस्ट, एंड बिकॉज इट इज गेटिंग मिक्स विद द सलाइवा, उसे एक फायदा और होता है कि आपका जो फूड होता है वो डाइजेशन शुरू हो जाता है आपके माउथ से, एंड देन इट गोज इनसाइड, एंड हियर कम्स द रोल ऑफ योर न्यूट्रिशन. ओके, जस्ट अ मोमेंट, सॉरी. Okay, so now food is gone inside my stomach, and then now the main role of segregation of there doesn't take place, but yes, whatever you chew into your mouth, it mixes with the saliva and it passes from your food pipe, it goes to your stomach. And then you know that there are enzymes, there are various digestive juices are present who start further churning the food and make them as small as they can. And that's the process of digestion. डाइजेशन में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, वो मैं आपको नहीं सिखाऊंगी, बट डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि सब आपके इंटेस्टाइन में होता है, जहां से आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन होता है. बट वी आर नॉट डीलिंग विद दैट. सो नाउ योर फूड इज डाइजेस्टेड एंड the further process of it starts. So basically, the nutrient what you take into your body is divided into 2 parts. Macro. See how I open my mouth. So macronutrients are the one which is needed by your body in a maximum proportion or in a large proportion. And micronutrients are the one which are needed by us in a small proportion. Macros are needed in a more proportion doesn't mean that they are needed and the other one is not needed, और ठीक है नहीं हो तो भी चल जाएगा, ये नहीं चलेगा. एक ज्यादा प्रपोर्शन में चाहिए, एक कम. लेकिन ये ऐसे हो गया कि आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया और नमक नहीं डाला, वैसे ही आपने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ले लिए, बट अगर आपके माइक्रोज नहीं है
तो कोई फायदा नहीं है, बिकॉज उनका जो मैक्रोन्यूट्रिएंट का अब्सॉर्प्शन होता है या उनका फर्दर यूटिलाइजेशन होता है बॉडी में, उसके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की भी जरूरत पड़ती है। इसलिए आपको हमेशा आपके खाने में दोनों न्यूट्रिएंट बैलेंस करने होते हैं। अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट एक्सेस है और एक कम है, यू विल बी अनहेल्थ, राइट। मैक्रोज ज्यादा ले रहे हो, माइक्रोज कम ले रहे हो, तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जस्ट अ मिनट, अगेन आई विल जस्ट okay, so now what are macronutrients? Let's see what are macronutrients. So as I said, macro, आप अपनी खाने की थाली याद करिए शाम की। अब योगा वाले हो तो थोड़ा चेंज होगा, बट योगा के पहले अभी भी ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो हम चीटिंग करते हैं। शाम की आपकी खाने की थाली याद करिए, सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? गोपाल जी बताइए, नहीं गोपाला, when you take your dinner in the night, what is the wholesome food you take it like in your plate? What do you exactly eat? I have boiled vegetables and rice. Okay, so rice is there, right? Yes. So basically, you have a proportion of rice which has a carbohydrate, right? Very good. And you have boiled vegetable which gives you all the micronutrients. So you are taking one of the macronutrient with the your micros. Okay. What about your protein content? What you take it like in the daytime? Do you eat anything like curd or paneer or something which gives you protein, pulses, cereals, something like I am allergic to lactogen, so Okay. I avoid all those things. So generally, I eat only rice and dal. Acha, so dal you are taking, very good. So that's great. So this is when you go to see Indian traditional food, हमारा ये जो macros होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। हम लोग अच्छे से इतना सारा राइस, पुलाव और बिरयानी और नॉर्मल राइस हम खा लेते हैं और रोटी खा लेते हैं। एक मिथ क्या है, हम बोलते हैं कि राइस खाने से मोटे होते हैं तो हम चपाती खाएंगे। दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। अगर ये एक आपको लाइक 90% शुगर देता तो दूसरा आपको 70-80% देगा। It's just a little bit of variation. Indian people have a myth of it like they say कि अगर पतले रहना है तो हम लोग रोटी खाएंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, रोटी की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं और चावल नहीं खाते, बट अल्टीमेटली वो कार्ब्स ले रहे हैं, अच्छा खासा कार्ब्स लेते हैं। सो हमारे फूड में रोटी होती है या तो चावल होता है, तो अल्टीमेटली दोनों से हमें कार्ब्स मिल जाता है। दाल होती है, आपको प्रोटीन मिलता है। उसके बाद सब्जियां होती है जिससे आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा अचार हो गया, पापड़ हो गया, ये सब आपको सोडियम, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिनकी जरूरत होती है बॉडी में, तो वो सारी चीजें भी आपको मिल जाती है। सो हमारा जो carbohydrate are the macronutrients a part of. So macronutrients, these are present in the large quantity in our food and are also required in a large amount by the body. It's not that they need it in a less amount, they are required in a large amount. But again, there is a condition applied, which I'm going to tell you afterwards. So carbohydrate, protein, fats and oils. Fat and oil are almost the same because oil converts into a fat, or oils are your fatty acids. So basically, these are the three main nutrient, macronutrients, which are needed in our body in a large proportion. गोपाला, अगर आपको लैक्टोज टॉलरेंट है तो भी आपको प्रोटीन का इंटेक चेक करना पड़ेगा, चाहे पल्सेस से लो, चाहे दूसरी कोई भी चीजों से लो, दाल का अमाउंट बढ़ाओ, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज्यादा हमें प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी में। कार्ब्स अल्टीमेटली, अगर आप थोड़ा एक्सेस कार्ब लेते हो तो बाद में वो यूटिलाइज नहीं हुआ तो फैट में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में और मोस्ट नेग्लेक्टेड इन आवर डाइट। ओके, So it's not like I don't eat generally, but occasionally, like once in 10 days or like 15 days, I try them. Like when I feel like no, it is not my content, so I stop again. Are you a vegetarian? No, not really. So egg is the good option. You can go ahead with the egg. To, that is also my problem. I can't eat my egg. Oh my God! So you are an exceptional case. That's really good. You know, you can have your own
experience sharing a book where you can actually write down what, trigger what not, and you can just be a very good guide to the people who have this problem. You must have seen a people who have big problems, and from that they find out the solution and they become, something inventor in a life. So definitely Actually, I would like that's to a interrupt because I changed my entire diet concept after my naturopathy training. Okay. I got to know that where, what to eat, how much to eat, when to Very eat, good. when not to eat. By my body talks to me, so I Oh. control on that. Like occasionally I go for the non-veg parties, but still, the moment I go there, I know my body is getting How? lost. So I go sattvic again, bland for some particular days, recover everything, and then go Yeah. for. Being yoga, anyways, we are not allowed. But see, being a vegetarian somehow, see, I always say yoga is a classical science. So that time when it was written, the condition was different, and now the condition is different. So little bit manipulation in our diet as an advanced and modern human being, we should be doing it. So carbohydrate, protein, and fat is the macronutrient which are needed by us in a large quantity. We'll see carbohydrate. So carbohydrate provides you energy and regulates your blood glucose. Okay. So whenever we take any carbs, it converts into a glucose. There are various forms of glucose, fructose, maltose, not lactose, glucose, fructose, and maltose. So there are various forms of the glucose. When you take carbohydrate from any food like starchy food, potato, sweet potato, corn, your rice, your chapatis, even the multigrain gives you some amount of carbs. And any starchy food, bread, butter, pasta, anything made by maida, complete empty calories, all of these things gives you carbohydrate. And this carbohydrate is literally needed by you. As all this carbohydrate enters in us food, from the food after the digestion into the bloodstream, and from the bloodstream it goes to your cells. And there you know that these carbohydrates, the glucose are converted into ATP, adenotriphosphate, the energy currencies. तो पैकेजिंग होती है, मतलब रॉ मटेरियल जाता है, फिर आप लोग लाते ना आजकल मॉल में मिलती है इंस्टेंट चपाती जिसको गर्म करते हैं और खा लेते हैं, तो वैसे ही आपका कार्बोहाइड्रेट एटीपी में कन्वर्ट होकर आपके सेल्स में होता है. जब भी आपकी बॉडी को जरूरत होती है वो उसको ऑक्सीडाइज करता है. किससे करता है? ऑक्सीजन यूज करके. इसलिए प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए हमारे बॉडी में ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है. तो जब आप ब्रीद इन करते हो, जो ऑक्सीजन हमारे सेल में अब्सॉर्ब होता है, वो ऑक्सीजन आपके एटीपी के साथ ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोज आपको एनर्जी रिलीज करता है. इसलिए जिन लोगों को हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी होती है, एनीमिक होते हैं ना, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं. दे फील फटीग वेरी ऑफनली. द रीजन इज दैट कि ऑक्सीजन कम होता है तो एनर्जी का प्रोडक्शन कम हो जाता है, एंड यू फील breathless, energyless. That is the reason. So carbohydrate, it will prevent the degeneration of the skeletal muscle. Now, what is this degeneration of skeletal muscle? So you have a fat, below that you have a muscle. Your muscle are made by protein. Okay. So if you don't take enough of protein, that is one different thing. But when you don't take enough of carbohydrates, अगर आपकी बॉडी में मसल बिल्डअप नहीं होगा तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो आपके मसल से पूरा होगा. तो आपका जो बॉडी है, अगर उसके पास फैट नहीं है इनफ, या आपका कार्ब्स इनटेक इनफ नहीं है, तो वो क्या करता है? आपकी बॉडी के मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है और उसके बाद वहां से एनर्जी लेता है. आपके मसल्स प्रोटीन से बने हुए होते हैं. एक बेसिक नॉलेज में याद रखिए कि आपका फैट होता है, फैट के नीचे जो आपका मस्कुलर लेयर होता है, दैट्स अ प्रोटीन. इफ यू वांट टू बी वेरी गुड हेल्दी विद अ गुड मसल टोन, योर प्रोटीन इनटेक हैज टू बी गुड. सो it will prevent the degeneration of the skeletal muscle, because if you take enough amount of carbohydrate required by you, your body will utilize that only. So your body will not attack your skeletal muscle. There are people who stop carbohydrate during dieting and then they start losing weight, but they don't understand. They don't only lose the fat, but they lose the muscles.
and then they start become weak, and then they start getting, the pains like joint pain, weakening of the muscles and all that problems. All these problems are the one which is those people feel. Okay, it prevents the breakdown of the protein for energy. As I said, अगर आप enough energy लोगे, enough carbohydrate लोगे, तो आपकी बॉडी कभी भी मसल को ब्रेक नहीं करेगी. अगर आप नहीं लोगे तो आपकी मसल ब्रेक होगी. अगर आप हाइपरथायरॉइड वालों को देखोगे, द पीपल हु हैव हाइपरथायरॉइड, राइट, वो बहुत स्किनी होते हैं. रीजन यही होता है कि उनका मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है कि जितना भी वो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं एनर्जी में कन्वर्ट होती है और बर्न आउट हो जाती है, जिस वजह से उनकी बॉडी की जो एनर्जी नीड है ना वो फुलफिल नहीं होती, और फिर उनकी बॉडी मसल start utilizing muscle. And that's why if you see the people suffering from hyperthyroidism, अगर पता है दवाई ले रहे तो ठीक है, आपको वो एक पतले होंगे, स्किनी होंगे, बट एकदम स्केलेटन जैसे नहीं दिखेंगे. बट अभी तो सबको पता है थायराइड प्रायोरिटी टेस्ट में हो गया है. आप डॉक्टर के पास गए तो डायबिटीज थायराइड वो लिख के ही दे देता है, जाओ चेक करा लो. नहीं तो पहले जब लोगों को नहीं पता होता था, यू वुड सी देम एकदम स्किनी, आंखें ऐसी बाहर, and it's like skeleton. You can count each and every rib of their body. पूरा muscle breakdown हो जाता था. That was the one problem. Now carbohydrate also helps with the fat metabolism. If the body has enough energy for its immediate need, it stores the extra fat, right? जैसे एक simple calorie calculations होता है. अगर मेरी बॉडी की नीड है 2000 कैलोरी पर डे और मैं 3000 कैलोरी ले रही हूँ, राइट, तो वो जो 1000 कैलोरी होती है ना एक्सेस, वो मेरी बॉडी में स्टोर होती है एज अ फैट. ओके, तो मुझे हमेशा, अगर मुझे हेल्दी रहना है, fat. Food stored in the plant. So all the starchy food, they also gives you carbohydrate. It provides you sweetness to the food. Sweet potato is a complex carb जो आपको मीठा भी लगता है और अच्छा एनर्जी भी देता है. देखो बहुत से लोग फास्ट कर रखते हैं तो वो लोग स्वीट पोटैटो खाते हैं. कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, जिम जाते हैं, जिनको प्रोटीन पाउडर या एग नहीं पसंद, वो भी स्वीट पोटैटो खाते हैं. या एक्सरसाइज करने से पहले आप खा सकते हो, because it has a complex carbs. slowly break down होकर आपको एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है. Okay, carbohydrate is of two type. One is a simple carbohydrate and one is a complex carbohydrate. Always go with the simple carbs. Always go with the complex carbs. Simple कैसे पता, आप खाओगे डाइजेस्ट होगा और आपका शुगर स्पाइक होगा. और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स कैसे होगा, धीरे 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 ब्रेक डाउन होगा, धीरे 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 एनर्जी रिलीज करेगा. तो आप कैसे, आप थका हुआ भी फील नहीं करोगे और आपको पूरे दिन एनर्जाइज भी रहोगे एंड आपका शुगर भी स्पाइक नहीं होगा. ऑलवेज अ पीपल हु इज डायबिटिक शुड opt for a complex carbs. Like sweet potato is one of the complex carb. You can go with the oats, you can go with the quinoa, you can go even अगर आप लोग को राइस खाने की क्रेविंग होती है, go with the brown rice. It has a calorie not as white rice, but along with the calorie it will give you so many nutrients, magnesium, and many minerals also provided by your brown rice. Because उसको कैसे करते हैं, बॉईल करते हैं ना, बॉईल करके उसमें का पानी निकाल देते पहले से. अगर आप ट्रेडिशनल फूड मेथड देखोगे तो पहले पानी निकाल दिया जाता था राइस में से, बहुत सारा पानी डाल के राइस पकाते थे, फिर पूरा पानी निकाल देते थे एंड दे वुड कुक द फूड. अब हम लोग करते नहीं, कुकर में लगा देते एंड देन वी ईट इट एज इट इज. तो हम लोग पूरा कार्ब्स ले लेते हैं व्हाइट राइस में. ये है आपका कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन का फंक्शन क्या है, तो प्रोटीन का फंक्शन इतना ज्यादा है कि आप लोग सोचोगे आज की ओ गॉड मैं इतने दिनों से अच्छे से और जिंदा कैसे हूं, मैं तो प्रोटीन इतना लेती ही नहीं. सो डेफिनेटली प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर बिल्डिंग, repairing and renewing all the organs of the body. Your 99% of the hormones are made by proteins. Your muscles are made by protein.
most of the chemical reaction which are takes place in your body is made by protein. There are 15 different type of proteins which are used in our body: hair protein, muscle protein, hormone protein, various. Means most of the 99% of your hormones are also through the protein. So protein is very important for us in our body. And अक्षय कुमार वाली ऐड तो देखी होगी, जितना आपका वेट है उतना ग्राम प्रोटीन आपको लेना चाहिए, मोस्ट नीडेड, बट हम लोग उसका आधा भी नहीं लेते। कैलकुलेट करना शुरू करो, आप लोग को पता चलेगा आप आधा भी नहीं लेते उसका। ठीक है, वी आर बॉर्न, हमारी बॉडी अडेप्टेड है और एडजस्ट हो रही है उस तरीके से, बट जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है या हमारा इम्यूनिटी वीक होता है, वैसे वैसे हमें ये सारी कमियां जो बॉडी में होती है डाइट रिलेटेड, वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इसीलिए प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखो। प्रोटीन आर बेसिक सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी, द स्टफ आउट ऑफ विच ईच सेल इज बिल्ड अप। यू नो, आपके सेल का आउटलाइन भी प्रोटीन से बना हुआ होता है आपका। सो यू नीड प्रोटीन इन एवरी एस्पेक्ट। एट द सेम टाइम प्रोटीन जो होता है वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है आपको। सो प्रोटीन डज नॉट ओनली गिव इज इम्पोर्टेंट इन दिस एस्पेक्ट, बट इट इज ऑलमोस्ट इट इज इन ऑल द एस्पेक्ट। ये आपका वेट गेन कभी नहीं कराएगा, लेकिन एक्सेस प्रोटीन भी नहीं लेना है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो आपके बॉडी वेट से इतना अगर आप नहीं ले सकते, अगर आप इतने ज्यादा एक्टिव नहीं हो, तो भी आपको 60 to 70% मेंटेन करना चाहिए, मोस्ट नीडेड। फंक्शन ऑफ फैट। सो फैट क्या है? योर पहला तो आपका कार्बोहाइड्रेट आपके फैट में कन्वर्ट होता है, दूसरा आपके फूड के थ्रू जो आप फैट लेते हो, ऑयली चीजें, फ्राइड चीजें जो आप खाते हो, ऑल ऑफ देम गिव यू अ फैट। बट you don't think that you don't need fat in your body. You need fat in your body also because it provide you concentrated energy. आपके जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से फैट मिलता है ना, उससे 3 गुना ज्यादा फैट एनर्जी आपको फैट से मिलता है। अगर एक मॉलिक्यूल फैट का ब्रेक डाउन होता है तो आपको 9 कैलोरीज देता है, वहीं पे एक कार्बोहाइड्रेट और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो आपको 4 कैलोरीज देता है। मोर देन डबल आपको मिलता है इससे। A very concentrated, but yes, if you can handle this fat stuff, then only you take in more amount. Otherwise, stay limited and needed only. It provides you concentrated source of energy, reduces use of protein, right? अगर आपकी बॉडी में enough amount of carbohydrate और fat है, तो आपकी बॉडी एनर्जी और बाकी चीजों के लिए यूटिलाइज करेगी, वो आपके प्रोटीन को ब्रेक डाउन नहीं करेगी। पर अगर आप ये सारी चीजें कम ले रहे हो क्योंकि आप मोटे हो जाओगे, ये डर है आपको, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी आपका प्रोटीन यूज करने लगेगी और फिर आपको मस्कुलर पेन स्टार्ट होगा। पता है, रात को सोने पे क्रैम्प आना, हाथ ऐसे दर्द होना, जॉइंट्स में पेन होना, ये सारा आपका मसल वीकनिंग का सिम्टम होता है। आपका फैट सोल्यूबल बहुत सारे वाइटामिन है, A, D, E के, जो फैट में ही सोल्यूबल होते हैं और वो आपकी बॉडी के हर एक सेल तक जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट नहीं है इनफ, तो ये सारे प्रोटीन आपकी बॉडी में पहुंच नहीं पाएंगे ईच एंड एवरी सेल तक, और फिर इसके साइड इफेक्ट आपको भी पता है, ए का क्या फंक्शन है, डी का क्या है, ई का और के का क्या है। यू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस, सो यू नीड अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ फैट ऑल्सो इन योर बॉडी। It helps to maintain the body temperature also. Layer of the fat under the skin helps you to conserve the body heat. पता है, ऐसे बोलते जो लोग फैटी होते हैं उनको थोड़ी कम ठंड लगती है, जो थीन होते हैं उनको डेफिनेटली ये आपके इंसुलेशन का काम भी करता है, आपको बॉडी हीट भी प्रोवाइड करता है, तो डेफिनेटली ये होना चाहिए। एक्ट्स एज अ कुशन फॉर द वाइटल ऑर्गन। सबको चाहिए, बेली फैट नहीं हो, बेली फैट नहीं हो, नहीं, लेकिन थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि आपके जो विसरल ऑर्गन होते हैं नियर द लोअर एब्डोमेन में, वहां पे आपको प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो इतना भी जीरो फिगर में नहीं जाना है आपको कि वो यहाँ पे थोड़ा सा भी कोई पंच हो जाए या चोट लग जाए तो आपके इंटरनल ऑर्गन पे इंजरी हो जाए। सो इवन यू नीड अ फैट, लिटिल बिट फैट फॉर अ कुशनिंग ऑफ द, यू नो, टू प्रोवाइड अ कुशन टू योर इंटरनल ऑर्गन। उसके बाद इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द टिश्यू, सो योर फैट्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द टिश्यूज इन योर बॉडी। ठीक है, ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। फिर आते हैं आपके, अभी देखो यहाँ पे मैंने थोड़े फंक्शंस भी लिख दिए आपके।
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के। विटामिन बी कितने टाइप के होते हैं? B1, B2, B3, B4, B5, B6, B11, B12, टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं, राइट? एंड ऑल ऑफ देम हैव अ सर्टेन फंक्शन। विटामिन B12 और B कॉम्प्लेक्स एज अ वेजिटेरियन जो होते हैं उनको फूड के थ्रू बहुत कम मिलता है, बट विटामिन B हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स इन अ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। अगर आपका विटामिन B12 कम है तो आपको कभी कभी ये प्रॉब्लम होगी, भूल जाओगे, या कोई कुछ बोल रहे आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, you need it for a very alert brain. So वेजिटेरियन लोग के लिए अलार्म है कि आप अपना B12 हमेशा मेंटेन रखो, विटामिन B से रिलेटेड सारी चीजें। So B complex, consider all your vitamins. If you go to C, okay. So function of it, need for utilization of carbohydrate in the body. अभी मैंने बोला ना, आप मैक्रोज ले लोगे लेकिन जब तक ये माइक्रोज नहीं होंगे ना, कुछ काम का नहीं आपका मैक्रो। Now you need your vitamin B to utilize your carbohydrate in a body. Necessary for the normal function of the nervous system, as I told you. Nervous disturb तो endocrine disturb, endocrine disturb तो पूरा body disturb. तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका विटामिन बी अच्छे से आप यूटिलाइज करो, कंज्यूम करो, बेसिकली essential for the proper growth, helps the body organ to function in a normal way, needed for the formation of the red blood cells, helps in the digestion and improvement of the appetite, necessary for the formation of the substances that holds the cell together, needed for the strong teeth and the bones. Vitamin C, I'm reading, helps in the production of hemoglobin, helps in the utilization of other nutrients in the body, helps in the fighting of कितना कोविड में तो अब हर चीज में आ गया इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब एक सादा वेफर बेचना तो भी आगे इम्यूनिटी बूस्टर लगा देते हैं, कुछ जरूरत नहीं आपको। विटामिन सी ले लो, जो भी सीजनल फ्रूट है, अभी कौन सा सीजन है तो आपको ऑरेंजेस मिल रहे हैं, जितने भी आपको ग्रेप्स मिल रहे हैं खा लो, नींबू अभी गर्मी आ रही है, नींबू है, ट्राई एंड टेक इट फ्रॉम द फूड ओनली, ऑलवेज ट्राई टू टेक इट। सी विटामिन सी इज इजीली अवेलेबल, बट बी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि बहुत स्पेसिफिक फूड में मिलता है, जैसे पल्सेस में है कुछ, वो भी स्प्राउट करने के बाद, जब आप पल्सेस खाते हो ना, जब उसको स्प्राउट करते हो ना तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ जाती है और डाइजेशन में वो और इजी हो जाता है। इसके लिए स्प्राउट्स को हमेशा पल्सेस को हमेशा स्प्राउट करके खाना चाहिए, वो ध्यान में रखो। सोर्सेस क्या है तो देखो, अभी बी के सोर्सेज है लिवर, पोल्ट्री मीट, फिश, एग्स, होल ग्रेन्स भी है, सीरियल्स भी है और पल्सेस भी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड मिल्क। तो आपको वेजिटेबल में भी मिल जाता है, बट डिपेंड करता है आप कितना अमाउंट लेते हो। कैसे होता है, जब आप नॉनवेज में उसको लेते हो तो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आपको मिलता है, आपको वेज में जब आप लेते हो तो वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में मिलता है, इसलिए आपको अमाउंट का भी कैलकुलेशन रखना पड़ता है। सिट्रस फ्रूट कोई भी ले लो, आंवला ले लो, लेमन ले लो, जो भी खट्टी फ्रूट्स है वहां पे आपको हर जगह से विटामिन सी मिल जाता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं। ऑल दीज आर मोस्ट नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ योर बॉडी। फैट सॉल्युबल विटामिन में आपका ए है, डी है, ई है और के है। ए क्या है तो आपको पता है, पहले बहुत होता था सबको नाइट ब्लाइंडनेस, अभी तो नहीं होता इतना, बट पुराने टाइम में तो बहुतों को नाइट ब्लाइंडनेस बहुत कॉमन था। ऑल्सो इसेंशियल फॉर द आई फंक्शनिंग। आंख नहीं तो कुछ मतलब नहीं है, आप कितने भी अच्छी फिगर हो, कितने भी नॉलेजेबल हो, कुछ भी हो जाए, आंखें नहीं तो कुछ नहीं, याद रखो। तो आप सोचो फैट आपको चाहिए क्योंकि वो विटामिन ए को डिसॉल्व करके लेके जाता है। फैट का आपको सिर्फ प्रपोर्शन देखना है बॉडी के हिसाब से, बट नेवर एवर गो विद द डाइट वेयर यू डोंट टेक फैट एट ऑल। इसीलिए देखो आयुर्वेदा में आपको घी खाने के लिए बोलते हैं, दूध, दही, ऑयल भी आपको लेना है एक प्रॉपर प्रपोर्शन में, लेकिन आपको लेना होता है। जो भी नेचर में चीजें एग्जिस्ट करती है आपको हर चीज लेनी है, बट विद द राइट प्रपोर्शन। मुझे पसंद है इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, मतलब खा खा के इतना भी नहीं खा लूंगी कि आई बिकम ओबेस, but yes, I need it because my body need it. Sources of vitamin A is your liver, eggs, fish liver oil,
milk and its products, green leafy vegetable, that is बथुआ. अभी बथुआ का सीजन है, ठंडी में मिलता है. Yellow or orange fruits and vegetables such as pumpkin, carrot, papaya and mango. मैंगो में तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम होते हैं और सोडियम, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं. एक्चुअली मैंगो हैज अ मेनी मिनरल्स. एक ही प्रॉब्लम है, वो मीठा बहुत ज्यादा होता है. तो जो डायबिटिक वाले हैं उनको भी खाना अलाउड है, आपको सिर्फ 1/4 लेना है. जो नॉन डायबिटिक है वो एक दिन में एक खा ले, आधा खा ले, डिपेंड करता है. बट यस, डायबिटिक पीपल कैन ऑल्सो हैव इट, नॉट लाइक दैट. नेसेसरी फॉर द हेल्दी स्किन, हमें सबको पता है. लाइनिंग ऑफ द नोज, जो हमारे नोज के अंदर म्यूकस लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती है अरे जर्म्स को अंदर जाने से, वो लाइनिंग को बनने के लिए यू नीड इट. आईज, ईयर एंड लंग्स, अदर ऑर्गन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट. विटामिन डी, उसके तो लिए बताने की जरूरत नहीं है. वी ऑल नीड इट फॉर द हेल्दी बोन. हेल्प्स इन द प्रॉपर अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. विटामिन, कभी भी किसी को देखो विटामिन डेफिशिएंसी होती है तो उसको कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया जाता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी में कैल्शियम होता है ना, फूड से मिलता है, उसको अब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है. तो आपने कितना भी कैल्शियम ले लिया, बट अगर विटामिन डी नहीं है इनफ, तो वो कैल्शियम अब्सॉर्ब नहीं होगा आपकी बॉडी में. एंड दैट्स व्हाई यू नीड देम इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन. एक्सपोजर ऑफ द सनलाइट इज द फ्री एंड द मोस्ट इजिएस्ट वन. बट बॉम्बे में कितना इजी है वो तो सबको पता है. ऑफिस चले जाते हैं तो कितना सनलाइट मिलता है वी डोंट नो. तो देख लो, अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फूड के थ्रू और दवाइयों के थ्रू आपको मैनेज करना पड़ेगा. नेवर एवर टेक एनी मेडिसिन बाय सीइंग एड्स. बहुत आती है एड, वुमेन्स हॉर्लिक्स, ये और वो, बड़ा होने के लिए ये एंड ऑल दैट. अपने डॉक्टर के कंसल्टिंग के बिना कोई भी खुद से दवाई लेके आपको नहीं खाना है. Egg, fish liver oil, butter, refined oil and ghee, many things gives you. Vitamin E prevents the destructions of certain substances in the presence of oxygen. All the cereals and pulses and vegetables gives you vitamin E. Vitamin K for blood clotting. हम लोग को जब कभी चोट लग जाती है तो वहां पे एक व्हाइट कलर की लेयर आ जाती है, जिलेटिनस. Prothambin is a chemical released by vitamin K so that it clots the place and prevent it from the outside injury. इसलिए विटामिन के बहुत जरूरत होती है. कभी कभी देखो किसी का ऑपरेशन होता है ना, तो डॉक्टर क्लॉटिंग टाइम लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग टाइम. तो अगर किसी का ब्लड क्लॉटिंग टाइम डिले होता है ना, उसको डॉक्टर देते हैं दवाई. देयर इज सम एजेंट व्हिच इज इंजेक्टेड इन योर बॉडी. बट हमारा नेचुरली ब्लड क्लॉटिंग टाइम अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बहुत फास्ट क्लॉट हो जाता है, और बहुत स्लो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत फास्ट क्लॉट होगा ना, तो कभी अगर आपको सलाइन लगाते हैं ना और आप वॉशरूम के लिए जाने के लिए वो सलाइन निकाल के वॉशरूम जाते हो और वापस आते हो ना, तब तक वो नर्व्स ब्लॉक हो जाती है. फिर डॉक्टर वो डिस्टिल वाटर का एक शॉट देता है, वो नस खोलता है, फिर आपको लगाता है. ये होता है. तो इतना भी फास्ट क्लॉटिंग नहीं होनी चाहिए, बट अल्टीमेटली वी आर यूनिक. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट टाइम फॉर एवरीथिंग. Formation takes place in the intestine by bacteria, normally presents there, and then otherwise green leafy vegetables. Then what are micronutrients? मैंने वो ऊपर जो आपको बताया वो एक्चुअली इसके बाद था. Micronutrients are important nutrients which are present in the small quantity in the food but are essential for the body and called micronutrients. मुंह बंद करके बोलते ना, उतना ही याद रखना, स्मॉल क्वांटिटीज. दीज आर मिनरल्स एंड विटामिन्स. कोई एक दवाई ले लो मल्टीविटामिन, इतने मिनरल के नाम लिखे होते हैं कि हम पढ़ पढ़ के खत्म नहीं होता है. बट यस, वो सब चाहिए होते हैं बॉडी में. कुछ बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है फूड के थ्रू, कुछ आपकी बॉडी नहीं बनाती है, उसके लिए आपको बाहर से लेना पड़ता है. If these micronutrients are not eaten in required amount, it results in the deficiency disorders, and that's why minerals and vitamins are very much needed. Vitamins, there are 13 essential vitamins in our body. Okay, A, C, D, E. तो कितने हो गए? 4 हो गए, और 8 आपके इधर के हो गए, B के. B1 से B6 था, B11 और B12, तो 8 हो गए टोटल.
इसमें फैट सोल्यूबल जो है वो ADEK है और वाटर सोल्यूबल जो है वो B और C है। इसीलिए देखो बोलते हैं ना, जो वेजिटेबल को ज्यादा इवेपोरेट नहीं करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है तो वो वाटर के साथ इवेपोरेट भी हो जाता है, विटामिन C, दैट्स व्हाई। सो योर B एंड C इज अ वाटर सोल्यूबल। अगर आप कोई ऐसा फूड ले रहे हो जिसमें B और C है तो उसको ओवर कुक मत करो, पानी में काट के मत धो, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है, ये आपको ध्यान रखना है। कच्चा खाओगे तो बहुत अच्छा, अगर रॉ वेजिटेबल्स ले सकते हो, क्योंकि वो आपके व्हेन यू स्टार्ट च्यूइंग वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत अच्छी चीज होती है वो। सो आप वो कर सकते हो। सैलेड में टोमेटोज, अगर आप आपके सैलेड में लाइम, पहले के टाइम पे तो लोग दाल में भी नींबू निचोड़ के खाते थे, मतलब बहुत सारे लोग होते जो बहुत सारी चीजों में नींबू निचोड़ के खाते हैं, दैट्स अ वेरी गुड हैबिट। मुझे तो खट्टा नहीं पसंद, तो मतलब मैं नींबू पानी पी सकती हूँ, बट आई मेक श्योर दैट आई ड्रिंक नींबू पानी एटलीस्ट। सो इफ यू कैन इनकलकेट इन योर लाइफ, लेकिन बनते हुए खाने में कभी नहीं डालना। जब आप सर्व करते हो ना तभी आपको लाइम स्क्वीज करना है, अदरवाइज अगेन इट्स अ वाटर सॉल्युबल, इट विल इवेपोरेट आउट। सो इफ यू रियली वांट टू, सैलेड में डालो, दाल में डालो, या कोई ऐसी सब्जी है जिसमें आप यूज कर सकते हो पकी हुई, जब आप खाने जाते हो तब यूज करना है आपको। ओके, विटामिन C इज द मोस्ट नीडेड बिकॉज यू नो द इम्यून सिस्टम। अभी अभी हम लोग कोविड से आए तो हमें पता है कितना इंपॉर्टेंट है इम्यून बिल्डअप करना। अभी नया वायरस आया है जो यहाँ पे शुरू होता है, यहीं पे रहता है, लकीली वो लोअर रेस्पिरेटरी में नहीं जाता, लेकिन वो 15 से 20 दिन तक आपकी हालत बैड, मतलब यू आर इन अ रियली बैड कंडीशन। गले में दर्द होगा, आवाज नहीं निकलेगी, सलाइवा लेने नहीं होगा, खाना तो खा नहीं सकते, एंड इट इज स्टार्ट्स विद द वायरल and stays in the upper respiratory tract. So you really need a very good, immune system so that you fight with any kind of viruses entering. आजकल तो हर दूसरे दिन नया वायरस आ जा रहा है। एनवायरमेंटल कंडीशन इतनी चेंज हो रही है ना कि पहले वाले वायरस ही म्यूट होके उनका DNA चेंज होके ऐसे नया बन के आ जा रहे हैं। एनवायरमेंट में है वो लोग, बट फिटेस्ट विल सर्वाइव। डार्विन्स थियरी है, फिटेस्ट विल सर्वाइव। सो डेफिनेटली वो लोग म्यूटेशन करके नए बन के आ जाते हैं, एंड देन वी गेट caught into this. So there are 16 minerals required by our body. They are calcium, phosphorus, potassium, sulfur, sodium. ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हमने केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे, राइट? हम इनको ऐसे तो कभी नहीं लेंगे, भूल के भी नहीं लेंगे, लेकिन ये सब हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। ऑल ऑफ देम आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट येस वी टेक देम थ्रू द फूड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर आपका स्टूल ब्लैक कलर का आता है तो समझ लो आपके बॉडी में आयरन अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तुरंत टेस्टिंग कराओ, या तो आयरन ज्यादा ले रहे हो, ये चीज आपको करनी है। मैकेनिज्म, अब मैंने इतना कुछ बताया आपको। खाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, प्रोटीन खाना चाहिए, फैट खाना चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट खाना चाहिए। आपने सब खा लिया, सब खा लिया, बहुत अच्छे से खाया, कैलकुलेट करके खाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। क्यों? कुछ तो गड़बड़ है हमारे अंदर। वो गड़बड़ होती है हमारी डाइजेशन की। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है तो, अब देखो मेटाबॉलिज्म बहुत सारी चीजों से अफेक्ट होता है, यहाँ से सबसे पहला होता है अगर आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हो, अगर आप एंशियस बहुत ज्यादा होते हो। आई मे टेक 10 more minutes, हाँ, यू विल हैव टू बी वेट। सो आप सब कुछ खा लो, लेकिन अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो कोई फायदा नहीं। एंड दैट्स हियर द रोल ऑफ योर मेटाबॉलिज्म कम्स इन। हम लोग हमेशा सुनते हैं मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म, योगा में हम लोग आसन करते हैं मेटाबॉलिज्म बट ये है क्या एग्जैक्टली? तो मेटाबॉलिज्म ये होता है कि जब हम कोई खाना खाते हैं, all the physical and chemical activities in your body that convert or uses the energy, कहाँ से आई एनर्जी? फूड से आई। तो वो उसको कन्वर्ट करना एनर्जी में और उसका यूटिलाइजेशन करने के लिए हेल्प करना आपका मेटाबॉलिज्म करता है। As the food enters in the body, it gets broken down into the smaller pieces, a component, and then it is provided to the body as and when it is needed. That's a metabolism. ये आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपको थायराइड, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज होता है।
दैट्स योर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी। तो इसमें क्या होता है, थायराइड में तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है, जो आपका थायराइड ग्लैंड कंट्रोल करता है, वो तो या तो हाइपर हो जाता है, मतलब बियॉन्ड द लिमिट काम करने लगता है, या तो अंडर एक्टिव हो जाता है। तो आपका पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, ड्यू टू विच योर फूड अब्जॉर्प्शन either doesn't get it or it get absorbed and does not get utilized, it burn out also. So ये प्रॉब्लम होती है। एक नॉर्मल इंसान के लिए मेटाबॉलिज्म, थायराइड के लिए तो ठीक है, वो प्रॉब्लम में हो गई। एक डायबिटिक पर्सन के लिए ये होता है कि उसके पैनक्रियास प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, जिस वजह से जो ब्लड ग्लूकोज रिलीज होता है आपके फूड के थ्रू, वो आपके सेल के अंदर नहीं जा पाता। जब वो आपके सेल में नहीं जाता तो आपका सेल बैठ के वेट करता है कि शुगर आए तो मैं काम करूं। अगर आपके सेल में शुगर जाएगा ही नहीं, कार्बोहाइड्रेट जाएगा ही नहीं, तो आपका सेल आपके लिए एनर्जी कहाँ से बनाएगा? और जब आपका सेल आपके लिए एनर्जी नहीं बनाएगा तो आप थका हुआ फील करोगे। और फिर इसीलिए डायबिटिक वालों को हमेशा भूख लगी होती है, क्योंकि उनकी बॉडी उनको जितनी एनर्जी चाहिए उतनी दे ही नहीं पाती। इसलिए डायबिटिक पर्सन को एक्सरसाइज जरूरी है। आप आपकी बॉडी को मजबूर करते हो ना, यू हैव टू एब्जॉर्ब, वो करते हो आप आपके इंसुलिन को। और हमेशा पार्ट्स में इसलिए खाते हो क्योंकि जब आप खाते हो तो आपका इंसुलिन जो है वो ट्रिगर होता है और थोड़ा थोड़ा इंसुलिन रिलीज होता है हर मील पे आपके। इसलिए डायबिटिक को बोला जाता है एक साथ बहुत सारा नहीं खाओ, आप थोड़ा थोड़ा खाओगे तो थोड़ा थोड़ा इंसुलिन ट्रिगर होगा और थोड़ा थोड़ा शुगर आएगा और वो आराम से आपके सेल्स में जाएगा। एट द सेम टाइम आपको आपकी बॉडी का कैलोरी नीड बढ़ाना होता है। तो जब आप रनिंग या जॉगिंग या एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी को जब चाहिए एनर्जी, राइट, तो आपकी बॉडी वो सेल में से अब्सॉर्ब करके लेती है, आपके ब्लड से वो खींच के लेती है। इसीलिए एक डायबिटिक पर्सन अगर योगा करता है, वॉक करता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसका ब्लड शुगर हमेशा कंट्रोल में रहता है। आप आपकी बॉडी को फोर्स करते हो कि तुम ले लो शुगर ब्लड में से, और वो बॉडी लेती है, जरूरत है तो करना ही पड़ेगा। सो दे टेक इट। स्मॉलर मील विल ऑलवेज हेल्प यू टू ट्रिगर योर इंसुलिन पैनक्रियास। ओके, सो अब हम देखेंगे ये मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। सो मेटाबॉलिज्म इज कंसिस्ट ऑफ टू सेपरेट फॉर्म्स, कैटाइन एना। अभी क से कटिंग याद रखना, ठीक है, कटिंग, और एना इज उल्टा ऑफ कटिंग। अब मैंने क्या खाया, मैंने प्रोटीन खाया। अभी नीता मैम ने बोला प्रोटीन खाना चाहिए, मैंने तो खा लिया। अब प्रोटीन मेरी बॉडी में गया और मैं तो सो रही हूँ, जरूरत ही नहीं अभी मेरी बॉडी को। तो मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट तो करेगी ना, ये तो नहीं बोलेगी आपको कल चाहिए तो कल देखते क्या करना है। मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट करेगी और उसको ब्रेक डाउन करेगी। मैंने प्रोटीन लिया था, एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था, बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ आके ऐसे क्लस्टर बनाया था और वो क्लस्टर मेरा प्रोटीन था, राइट। अब मेरे जब वो अंदर गया और डाइजेस्ट हुआ तो वो कैटाबोलाइज्ड हुआ, मींस उसको छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो गया एंड इट बिकम्स अमाइनो एसिड। आपका जो प्रोटीन होता है ना वो अमाइनो एसिड से बना हुआ होता है। तो अब जब मेरे बॉडी में अब्जॉर्प्शन हुआ प्रोटीन का ब्रेक डाउन होके, तो वो क्या होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है, मतलब अमाइनो एसिड। दैट्स कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, वो अपने ओरिजिनल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है और पड़ा रहता है। अब मेरी बॉडी को चाहिए, अब मैंने सुबह जॉगिंग की, रनिंग की, योगा किया, बहुत कुछ किया, तो अब मेरी बॉडी को चाहिए वो सारी चीजें। तो मेरी बॉडी क्या करेगी, एनाबोलाइज करेगी, मतलब जो ऐसे ऐसे टुकड़े में पड़े हुए थे उन सबको जोड़ेगी और फिर वापस से वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाएगी और मुझे दे देगी, ठीक है। सो कैटाबॉलिज्म इज कटिंग डाउन एंड मेकिंग इनटू अ बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, and anabolism is making down them into again a molecule. Okay, जब आपको मेटाबॉलिज्म प्रॉब्लम होती है, अगर आपका कैटाबॉलिज्म स्लो हो गया, आपने प्रोटीन खा लिया, वो ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया, इनडाइजेशन हो गया, आपको हैवीनेस होगा, वो स्टूल के थ्रू निकल जाएगा, कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो कट ही नहीं हुआ ना, तो आपके बॉडी में अब्सॉर्ब भी नहीं हुआ। दैट्स द प्रॉब्लम। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो वो कैटाबॉलिज्म स्लो होता है, जब वो कट नहीं होता तो वो फिर वापस से बिल्डअप नहीं होता और फिर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगती है, क्योंकि आपने जो लिया वो बॉडी ने अब्सॉर्ब ही नहीं किया या फिर बहुत कम अमाउंट में अब्सॉर्ब किया, और जिस वजह से आपकी बॉडी की जो नीड थी वो फुलफिल नहीं हुई। एंड दैट इज व्हाई यू हैव टू वर्क ऑन योर मेटाबॉलिज्म। नाउ देयर आर वेरियस ट्रिगरिंग पॉइंट ऑफ द
सबका अलग अलग होता है, बट 2 ही होता है, या तो आप ज्यादा खाते हो या तो आप नहीं खाते हो। मैं बिल्कुल नहीं खाती, मुझे पता है। तो ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं खाती, तो एटलीस्ट मेरे पास फैट है, मेरे पास स्केलेटल मसल है, कुछ तो बॉडी ले लेगी, और मैं कितने दिन स्ट्रेस में रहूंगी, 1 दिन 2 दिन। लेकिन जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं उनके लिए बुरा है, क्योंकि हफ्ते में 1-2 दिन तो स्ट्रेस आता ही है, तो आप एक्सेस कैलोरीज लेते हो, इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है, राइट। तो जब आप योगा करते हो, आसनास करते हो, बाकी चीजें करते हो, तो आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं, आपकी सलाइवा रिलीज होती है, आपको गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, यू फील सेल्फ वर्थ, एंड दैट इज व्हाई योर सिस्टम बिकम गुड, यू फील हंग्री, यू ईट गुड फूड। तो स्वात्माराम जी ने क्या कहा है, खाना पहले भगवान को अर्पण करके फिर खाना है, आपके सामने जो भी आए, खुश होना है, थैंक्स बोलना है, तो आधा काम आपका वही हो जाता है, क्योंकि आप इतने मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरे सामने खाना है, जो सबको नहीं मिलता। सो आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है। उसके बाद आपको च्यू करना अच्छे से, ताकि स्टमक में जाके आपके स्टमक को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। सो दिस इज योर मेटाबॉलिज्म. So what is catabolism? I'll just read it. Catabolism is a catabolic activity. Here you begin with the large food molecule, and then they are break down into the smaller particles, and then they are sent off to the cells to participate the cellular respiration, which is a process of converting the molecules into ATP, a high energy molecule. संभाल के रख देते हैं आपको जब चाहिए। एक्चुअली ये साइमल्टेनियसली चलता है। अभी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मैं एनर्जी तो यूज कर रही हूँ ना, तो अल्टीमेटली मेरा एटीपी ऑक्सीडाइज हो ही रहा है। आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम टेकिंग ऑक्सीजन, सो एटीपी मेरा एनर्जी को कन्वर्ट कर ही रहा है। आप लोगों को टीचर्स कभी फैट नहीं मिलेंगे। इफ यू गो टू सी स्कूल टीचर्स, लाइक यू विल नेवर सी देम खड़े होके इतना बोलते हैं कि पीपल से कि टीचर लोग का ये भी पतला होता है, बिकॉज वो लोग यहाँ पे भी बहुत मूवमेंट करते हैं। सो यस, टीचर्स बहुत बोलते हैं और डेफिनेटली वो एनर्जी यूटिलाइज होती है। सो cellular respiration is also the catabolic process which because it breaks down the smaller molecules from the digestion into a very small, जैसे देखो वहां पे गोल्जी apparatus है जो आपके अमाइनो एसिड को ब्रेक डाउन करता है, फिर वहां पे आपका सॉरी गोल्जी नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया है जो बिग बिग ग्लूकोज मॉलिक्यूल को स्मॉल स्मॉल में ब्रेक डाउन करके एटीपी में कन्वर्ट करके रखता है। तो आपके सेल के अंदर जो भी आपके न्यूट्रिएंट जाते हैं ना, वो फर्दर ब्रेक डाउन होकर और स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन वो आपको जब चाहिए तब वो बना के देते भी रहते हैं। आई विल नेवर से कि वो बना के रख देते हैं, क्योंकि ये साइमल्टेनियसली गोइंग ऑन प्रोसेस है। वी आर अलाइव, वी नीड इट। हाँ, जब आप जरूरत से ज्यादा ले लेते हो ना, तब वो स्टोर होना शुरू होता है, और अगर वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है तो एज अ फैट ओबेसिटी में देगा, लेकिन अगर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है ना, तो वो आपको बहुत सब्टल लेवल पे प्रॉब्लम देता है, वो डेंजरस होता है। एनाबॉलिज्म, मेकिंग डाउन द मॉलिक्यूल्स, ओके। सो it takes the smaller unit and make the big unit whenever it is required by the body. ओके, इसके पहले एक चार्ट है आप लोगों का, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फूड। जैसे अगर एक मैन है, सेडिमेंट्री वर्क अगर वो करता है, लेकिन ये भी है ना, ये भी अलग होता है। जैसे ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड अडल्ट के लिए दिया है, लेकिन एक आप नॉर्मली देखने जाओगे ना, तो इसमें भी एक कैच होता है कि अगर आपकी योर एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफर ऑन योर हाइट, वेट, एज एंड जेंडर एंड द क्लाइमेट ऑल्सो। अगर आप हाइटेड हो तो आपका सरफेस एरिया ज्यादा है, आपकी बॉडी में मसल ज्यादा है, सेल्स ज्यादा है, तो आपकी हाइट, वेट, एज, जेंडर, मेल्स का एपेटाइट ज्यादा होता है फीमेल से, राइट। अगर आप फैटी ज्यादा हो तो डेफिनेटली आपके सेल का एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर हाइट, योर वेट, योर जेंडर, योर वर्क, एवरीथिंग मैटर्स। ये एक स्टैंडर्ड टेंटेटिव है कि एक नॉर्मल इंसान है जिसको एक अडल्ट को कितना चाहिए। तो अगर आपका सेडिमेंट्री वर्क है तो आपको ऑलमोस्ट 2500 कैलोरीज लगती है दिन भर में। अगर आपका मॉडरेट वर्क है तो
आपको 2900 कैलोरीज, और अगर आपका बहुत हैवी वर्क है तो ऑलमोस्ट 4000 कैलोरीज लगती है आपको। अगर आप फील्ड वर्क करते हो या बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, वुमेन्स के लिए वही बहुत कम है। सेडिमेंट्री वालों के लिए 1900 और अप्रोक्सीमेटली मॉडरेट के लिए 2225, ऑलमोस्ट 2300। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो भी है आपका उसमें प्लस 300 आपको करना होता है। अगर फीडिंग फीमेल्स है तो डेफिनेटली उनको बहुत भूख लगती है, तो वहां पे कैलोरी काउंट होता ही नहीं बेसिकली। इन्होंने 3000 कैलोरी दी है, बट इट डिपेंड्स ऑन द इन्फेंट, चाइल्ड कितना ज्यादा फीड कर रही है उसकी मदर। बच्चों के लिए भी दिया है, इन्फेंट है अगर 0 to 6 month तो उसको 1000 कैलोरीज के आसपास चाहिए होती है। 6 से 12 महीने के लिए उतनी चाहिए। जैसे जैसे एज बढ़ेगी उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि बॉयज में देखो 16 से 18 को ऑलमोस्ट 2700 कैलोरी, बिकॉज दे बिकम वेरी एक्टिव एंड दे आर इन द ग्रोथ स्टेज। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन डेफिनेटली नीड मोर एनर्जी देन अस। तो जब आप कभी किसी को वेट लूज के लिए लेकर जाते हो, ये पढ़ लेना बाद में, तो आपको उसका है ना कैलोरी काउंट पे ध्यान देना है। मतलब आपको उसके न्यूट्रिएंट्स कम नहीं करने हैं, बट अगर वो एक समझो मैं हूं, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 2300 कैलोरी है तो आप मुझे 1800 कैलोरी पे लाके छोड़ दो। वो जो 500 डेफिशिट में मैं जाऊंगी ना, वो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना फैट नहीं है। कोई फैटी इंसान के लिए बता रही मैं, किसी को वेट लूज करना है, कोई ओबेज है, तो उसको ऐसा डाइट प्लान बना के दोगे कि अगर उसको 2300 कैलोरी चाहिए तो आप उसको 1800 की कैलोरी का डाइट दोगे। वो जो हर दिन का 500 माइनस है ना, वो उसका फैट बर्न होके उसकी बॉडी में निकलेगा। उसको एक्सरसाइज कर, लेकिन आप ये देखोगे उसका माइक्रो न्यूट्रिएंट कम नहीं होगा, उसका प्रोटीन इंटेक कम नहीं होगा, सिर्फ आप कट डाउन उसके कार्ब्स और फैट पे करोगे, क्योंकि उसके पास इतना फैट है कि वही उसको यूटिलाइज करना है। ओबेस पर्सन विल नेवर हैव अ हाई अमाउंट ऑफ मसल, ही विल हैव अ फैट। तो आप उसका फैट आराम से डिसॉल्व होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा खाना बंद करते हैं ना, तब उनको वीकनेस फील होती है। इसीलिए आप उनके कार्ब्स कम करो, लेकिन उनका विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन वो सब कभी मत कम करना, वरना उनको बहुत क्रेविंग होगी और वो गिव अप कर देंगे। सस्टेनेबल डाइट प्लान ऑलवेज गिव इट टू योर स्टूडेंट्स। व्हाट इफेक्ट योर प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म? तो फूड हैबिट, कभी भी खा रहे हो, कोई टाइम नहीं है, दोपहर है, शाम है, रात में, एनी टाइम यू आर ईटिंग योर फूड एंड ऑल दैट, सो यू नीड अ प्रॉपर फूड हैबिट। हमें योगा में बताया गया है सुबह उठने के बाद 2 घंटे के अंदर आपका पहला मील लेना होता है, बहुत ही हेल्दी, क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। उसके बाद 12 से 1 के बीच में आपको आपका लंच लेना होता है। 4 बजे इवनिंग स्नैक्स ले लो कुछ, और 7 से पहले खाना खा लो सोने से पहले। तो फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल जो लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं या फील्ड वर्क करते हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हाइपर एसिडिटी और ओबेसिटी। बेचारे खाना भी नहीं खाते फिर भी मोटे होते जाते हैं। द रीजन बिहाइंड द फूड हैबिट क्या होता है, जब आप टाइम पे फूड नहीं लेते ना, तो आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में चली जाती है और वो खाना स्टोर करने लगती है। वो क्या सोचती है, अभी खाया है, पता नहीं अब कब खाएगा, तो मुझे तो चाहिए, तो वो स्टोर करने लगती है। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेते हो तो भी आपकी बॉडी फैट स्टोर करती है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो भी आपको एनर्जी चाहिए होती है। तो जब भी आप कुछ भी अपनी बायोलॉजिकल थिंग से हट गए, whenever you disturb your homeostasis, your body starts storing the fat. अगर आपका वेट गेन हो रहा है और आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, तो समझ आपकी बॉडी स्ट्रेस की वजह से फैट को स्टोर कर रही है, क्योंकि आपको सोचने के लिए, टेंशन लेने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। डिजीज, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफस्टाइल सेम, आप अल्कोहल लेते हो, आप स्मोक करते हो, एनीथिंग दैट विल बी दैट वे। देन अदर देन दैट जेनेटिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं आपको। कुछ लोग टाइप 1 डायबिटिक होते हैं, कुछ लोग को जेनेटिकली कुछ चीजें नहीं खा सकते, कुछ लोगों को डाइजेशन इश्यूज होते हैं। सो देयर आर सम जेनेटिकल प्रॉब्लम। अल्कोहल कंजम्पशन से आपका एपेटाइट कम हो जाता है। रॉन्ग फूड, जैसे आप बियॉन्ड द प्रकृति अगर आपके कुछ खाना खाते हो तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ऑल दीज आर बैड हैबिट एंड हाउ कैन यू ओवरकम, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑन हेल्थ, ओबेसिटी, थायराइड, hypertension, diabetes, depression, insomnia, lack of sleep, irritation, depression, anxiety, name the disease comes from it.
सारी बीमारियां सिर्फ आपके यहाँ से शुरू होती है। आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग योगा स्टूडेंट हो, अवेयरनेस बहुत ज्यादा है आप लोगों को, तो डेफिनेटली आप लोग नहीं करोगे ये। स्ट्रेस आए, ओमकार करो, मेडिटेशन करो, निकल जाओ, किसी को फोन करो, बट ये अगर नहीं चाहिए आपको तो प्लीज, बिकॉज 99% डिजीजेज आर साइकोसोमैटिक। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपके डिसफंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन से होता हो। थायराइड होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में डिसफंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड होता है, जैसे कोई सीवियर थ्रोट इन्फेक्शन हुआ या किसी दवाई का, आपको बहुत रेयर सुनने मिलेगा। अदरवाइज फीमेल्स को ही क्यों होता है, उनको ही दुनिया भर की पड़ी रहती है, बहुत स्ट्रेस लेती रहती है। मेल्स को जनरली डिसफंक्शनिंग की वजह से होता है, और फीमेल को टेंशन की वजह से। हाइपरटेंशन मेल्स को ज्यादा होता है, जॉब पे रहना है, इंसेंटिव चाहिए, यू नो कंपटीशन वर्ड है, तो मेल्स को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स होती है। Diabetes, definitely male and female both, because it is connected with your food habit as well as your stress level. तो आपको वो चेक करना है। डिप्रेशन और इंसोम्निया तो जैसे ही लगे आप लो फील कर रहे हो और आपको कुछ तो हो रहा है, do not go into depression because your neurological disorder will take you somewhere. अगर आप अपने if you are not in your own self, that's a depression. There is no medicine for you to come out. ऊपर का सब आप मैनेज करोगे अगर दिमाग जगह पे है तो, लेकिन अगर आप मेंटली सिक और आपको वो बात पता ही नहीं, nobody can help you out. मेंटल हेल्थ इज द मोस्ट, मैं बोलूंगी थोड़ी वेट बढ़ जाए चलेगा, डायबिटीज हो जाए चले जाए, बट नेवर एवर गेट एनी डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस, न्यूरोसिस. Please do not fall into that. If you feel, go to the psychologist and meet. There is no harm, there is no shame. जब हम लोग थोड़े से सर दर्द पे न्यूरोलॉजिस्ट को जाके मिल सकते हैं, तो जब हमें ऐसे फील होता है तो हमें काउंसलर को मिलना चाहिए। अगर आपको ऐसे लगता है तो किसी क्लोज वन से बात करो, टीचर से बात करो, फ्रेंड से बात करो, बट स्टे अवे फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर्स विच इज मोस्ट कॉमन फॉर नाउ। योगा प्रैक्टिसेस जैसे मैंने बोला, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, षट क्रियास करो, आसनास करो, टोन अप योर बॉडी, काम डाउन योर मसल्स, माइंड, increase the more oxygen in your body, clean the internal system, you'll be healthy and happy. That's it. Yes, tips for healthy food habit, gender appropriate. तो अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि जब मैं स्कूल में या कॉलेज में थी तो मैं 4 बार खाती थी, जैसे मेरे पापा रोज बोलते हैं मेरा डाइट कम हो गया, अब मैं सिर्फ 2 रोटी खाता हूँ, जब मैं ऑफिस जाता था तो मैं 4 खाता था। तो मैं बोली पापा वो 30 साल पहले की बात है, अब आपकी एज हो गई, आपका मेटाबॉलिज्म। तो ही इज लाइक व्हाट डू यू थिंक आई शुड नॉट बी ईटिंग नाउ। तो मेकिंग देम अंडरस्टैंड इज डिफिकल्ट, बट यस यू शुड अंडरस्टैंड कि एज के साथ आपका फूड कम होगा, ये बीमारी नहीं है। आपको क्वांटिटी से ज्यादा फिर क्वालिटी पे ध्यान फोकस करना होगा। जेंडर मेल्स हो तो देख लो आपकी क्वांटिटी एक अच्छी होनी चाहिए विथ एवरीथिंग, हाइट, वेट, एज, सीजन के अकॉर्डिंग आपको फूड लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं मेरा गला खराब हो जाता है तो मैं ऑरेंज नहीं खाऊंगी, मैं एप्पल नहीं, ये नहीं, जो सीजन में जो फ्रूट आए आपको भर भर के खाना चाहिए। इट्स नेचर गिविंग यू नीड इट। ओके, सो दीज आर द टिप्स फॉर हेल्दी फूड हैबिट्स। थैंक यू। If anybody has something, I try to make it very precise because it's not a very small topic. I just wanted to make you people aware about the food habit, nothing else. So anybody wants to ask something, you can, or else we'll stop. I have taken your 20-minute extra. Thank you, ma'am, for sharing such good and information about food and diet. My pleasure, Kiranji, and you people are most welcome to ask anything and any time. अगर किसी को Very nice session. Thank you. थैंक यू मैम। एक सवाल पूछना था। हाँ बोलिए। अगर हम योगा कर लेते हैं तो योगा करने के कितने टाइम के बाद, जैसे भूख लगती है योगा करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, तो कितने टाइम के बाद खा सकते हैं हम? योगा करने के बाद आप तुरंत खाइए, योगा करने के पहले आपको सोचना है। ओके, थैंक यू मैडम। आपका कैमरा ऑन कर लीजिए ना, सो एटलीस्ट वील नो हु इज आस्किंग। हाँ, राइट, आई वाज जस्ट थिंकिंग हु इज दैट। देखो, योगा करने के बाद तो आपको जो मन में आए खाओ, आपको तो खुद को रिवॉर्ड करना चाहिए कि मैंने आज 1 घंटे योगा किया तो मैं कुछ खाऊंगी। योगा करने के पहले आपको ध्यान रखना है, बिकॉज आप
चर्निंग करते हो, ट्विस्टिंग करते हो, फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो, अगर आप पेट भर के खा के जाओगे ना तो पहले तो हिचकी आनी शुरू हो जाएगी और आपको गिडीनेस या वॉमिटिंग भी हो। अगर आप खाना खा के सूर्य नमस्कार कर लोगे ना 2-3, आपको वॉमिटिंग हो जाएगा, इतना प्रेशर आता है। तो खाना खाने से पहले योगा करना है। योगा करने के बाद आप कुछ कोई भी खाना खा सकते हो, उसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं। नेक्स्ट सेशन में मैं नहीं आने वाली, तो कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। Okay, just 1 more minute, I'll wait and then we'll wind up the session. मैम मुझे ना पूछना था कि जैसे पता है मेरे बॉडी का नेचर है पित्त वाला, पित्त हाँ। प्रकृति, और हाँ। मैंने वो वामन धोती है ना, वो भी कंटिन्यू 21 डेज किया था। तो मुझे ये जानना था, और मुझे भूख बहुत लगती है, बहुत, मतलब मैं खा लेती हूँ, बहुत ज्यादा एट ए टाइम नहीं खाती, लेकिन मुझे हर 2 घंटे बाद भूख लगती है, और वो भूख सिर्फ भूख नहीं होती, मतलब पूरा पेट में जलता है, लिटरली फ्रॉम बेली टू ऊपर तक मुझे पता चल जाता है। और अब मैं खाना 7 बजे खा लिया, अगर 7:30 में खा लेती हूँ, कोशिश रहती है, लेकिन मुझे 11 बजे, मैं अगर नहीं सो गई 10:30 बजे, तो इतनी भयंकर भूख लगेगी कि बस क्या पाऊं और क्या खाऊं और तसल्ली लगे। सरिता, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी प्रकृति की प्रॉब्लम है, वात पित्त और कफ। तो जो आपकी प्रकृति है ना, आपके स्टमक में बहुत डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। पित्त है ना आपकी प्रकृति, पित्त वाले लोग डाइजेस्टिव फायर उनका हमेशा इग्नाइटेड होता है, इसलिए आपको बहुत भूख लगती है। आपकी प्रकृति है वैसी। आपको एक चीज आपको क्या याद रखनी है कि आपको पेट खाली नहीं रखना है। भले 2 घंटे बाद आपको खाना है, आप खाइए, लेकिन आपको क्या करना है, आपकी एज और आपकी कैलोरी देखनी है, और आपके खाने को अच्छी चीजों से रिप्लेस कर देना है। जैसे आपको सुबह में भूख लग रही है तो आप अच्छा कुछ हेवी खाना ले लीजिए, पर ट्राई करो ना सरिता जी, ट्राई करो कि ऐसा फूड लो जो डाइजेस्ट होने में थोड़ा हेवी रहे। जैसे मल्टीग्रेन होता है ना, जैसे आप ओट्स बना के खा लो, या रागी या क्विनोआ की खिचड़ी ले लो, ऐसी चीज जो ज्यादा देर लगाए पचाने में। आपने उस दिन भी बताया था वो मल्टीग्रेन डोसा है, और हाँ। मैं मल्टीग्रेन चपाती ही बनाती हूँ। भूख लग जाती है 2 घंटे में सरिता हाँ। जी, फिर लग जाए। अरे वाह, तो एक काम करिए आप, घर में मतलब काकड़ी, कैरेट और फ्रूट्स, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब जो बहुत ज्यादा मीठे ना हो, शुगर हाई करे, वैसी चीजें आप रखिए। सिंगदाना, सूखा चना, मतलब जो भुना हुआ चना, उसके साथ हल्का गुड़, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं जानती हूँ, क्योंकि राइट नाउ मैं कुछ और भी परसीव कर रही हूँ, दैट इज इन योग शास्त्र ओनली डिग्री, तो काफी कुछ पता है। लेकिन मेरी ये चीज से मैंने सर से भी बात की वहां भी, तो ही सेड कि आप जैसे आप कह रहे हो ना, आप कुछ ऐसा हैवी खाओ थोड़ा सा, जो जाके रुके वहां पे, अगर आपको ऐसी तकलीफ है तो। क्योंकि आपका प्रकृति वैसा है, आप पित्त प्रकृति के हो, तो वो आपको प्रॉब्लम रहेगी। हाँ, जैसे वमन है ना, वमन ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 1 दिन करते रहो, ताकि एक्यूमुलेशन ऑफ पित्तास ना हो आपको, या वो जो आपको जलन होती है, क्योंकि एसिड रिलीज होता है ना, और जब भी एसिड रिलीज होगा तो आपको जलन होना ही है। पानी ज्यादा पियो सरिता जी, कीप ऑन डाइल्यूटिंग द एसिड विच इज रिलीजिंग इन द स्टमक, सो दैट द साइड इफेक्ट ऑफ एसिड ऑन योर स्टमक लाइनिंग शुड नॉट बी। वरना गैस्ट्रिक अल्सर के, अगर आप सोचोगे ना मुझे बार बार भूख लगती है, मैं खाऊंगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, तो बहुत लंबा टाइम तक भूखे मत रहो। उससे क्या होगा, जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होती है ना आपके स्टमक की वॉल को, वो अल्सर हो सकता है, फिर आपको पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे वो वॉल लूज हो गया और एसिड रिफ्लेक्स हो गया था, बहुत बुरा। 7 months before I got admitted in hospital. So start drinking more and more water. Keep on diluting the acid in your stomach. पानी तो आप पी सकते हो, तो पानी का कोई नहीं, पानी पीते रहो, और खाने में जस्ट रिप्लेस इट विद द कॉम्प्लेक्स फूड लाइक कॉम्प्लेक्स कार्ब। उसके लिए एक लिस्ट बना के किचन में चिपका दो और खाते रहो वैसे। नहीं तो आप अगर आपके पास लिस्ट में हमेशा होना चाहिए, वरना आप किचन में जाओगे ना तो 100 चीजें सोचोगे क्या खाओ, और अल्टीमेटली यू एंड अप विथ ईटिंग समथिंग नॉट टू बी ईटन।
इसीलिए हमेशा लिस्ट रखो। धीरे धीरे एज के साथ ना सरिता प्रकृति चेंज भी होती है, तो अभी मे बी आप ये प्रकृति में हो ना, धीरे धीरे आपकी प्रकृति थोड़ी माइल्ड भी हो जाएगी, होती है। हम हमेशा एक फिक्स प्रकृति में नहीं होते, वी आर मिक्स प्रकृति पीपल। मे बी इन यू इट इज वेरी लॉन्ग टाइम, और हाँ, मे बी मैं बाय बर्थ मिस, मुझे जब से समझा है ना, व्हेन आई वाज इन 7th 8th स्टैंडर्ड, फ्रॉम देन ओनली एंड राइट नाउ आई एम 41 रनिंग, मेरा ऐसा ही है। हाँ, तो अब आपको अवेयरनेस आ गया ना, फूड रिप्लेस करो, पानी ज्यादा पियो, और ज्यादा से ज्यादा ना फाइबर्स लेते जाओ, काकड़ी खाओ, टोमेटो खाओ, रॉ वेजिटेबल्स खाते जाओ, इतना न्यूट्रिएंट मिलेगा, कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं, पेट भी भरा रहेगा आपका। दलिया खाओ राइस की जगह पे, उसको भी टाइम, किनोवा खा लोगे ना, किनोवा राइस बना के, वो तो बहुत लंबा रहता है, बहुत बहुत हार्ड है। हाँ, एक बार किनोवा का राइस बना के खा के देखो, या नाश्ते में खा के देखो, बहुत हेवी होता है, ट्राई करो, ठीक है। सो चलो फिर ओमकार करते हैं। एवरीबडी सिट स्ट्रेट, inhale, exhale out. After next exhalation, inhale deep. Inhale. Inhale. शांति है, शांति है, शांति है। Gently rub your palms. Cup your eyes. Very slowly remove your hands. Namaste, everyone. So, have a great session ahead. Thank you for being a good listeners. Very nice session. Thank you, thank you. Thank you, ma'am. For anything, you can post your queries to me on personal and all that. You are most welcome. I just want you all to use it in your life and become healthy. So, see you all. Vishnuji, I can log it. I can leave now. Yeah. Thank you very much. Thank you, very much. Kiran. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, all of you. Thanks. Bye. Bye. Thank you. Thank you.